discuss nucleophiles and electrophiles. So, what is a nucleophile? Nucleophile means nucleus loving. Nucleus loving. Nucleus loving. So, this nucleophile, nucleus loving means it always attacks at the electron different center. That means positive charged center. Positive charged center. So, nucleus loving. It brings इलेक्ट्रॉन पेयर. ये इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रिंग करता है, लाता है. इट ब्रिंग्स इलेक्ट्रॉन पेयर. So we can say that nucleophile is a reagent which brings electron pair. So it may be neutral. ये neutral भी हो सकता है. यानी nucleophiles may be neutral, like water. Neutral. That means they have neutral with lone pair. They may be neutral with lone pair of electrons, like H2O, like NH3, like RNH2, like R3N. So these are nucleophiles. These are neutral nucleophiles. All of them have lone pair of electrons. These nucleophiles may be negative charged. ये negative charged भी हो सकते हैं, negative charged. Like we have OH. In nucleophile we have halogen X. We have, this is cyanide. We have RCH2 like this. This is carbanion. और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है. Carbanion का मतलब है it's the reactive species, unstable reactive species which has a carbon bearing negative charge. जिसमें एक कार्बन होगा जिसपे negative charge होगी. That is known as carbanion. So all these are negative charged nucleophiles. These are nucleophiles with a negative charge, जिनके पास negative charge होगी. So इसको हम डिनोट कर सकते हैं, मोस्टली हम लिखते हैं इसको Nu से, ऐसे Nu like this is a nucleophile. इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे Nu, ये nucleophile है. So we have now this electrophile. So what is electrophile? So electrophile means electron loving or electron seeking. So electrophile may be defined as a reagent. It is a reagent which is electron seeking or electron loving, यानी which takes, that means reagent which takes electron pair, which takes electron pair, जो accept करता है electron pair. Because this is electron deficient. जिस तरह वो electron rich होता है, ये electron deficient होता है. Nucleophile electron rich, this is electron deficient. This is deficient, electron deficient. इसमें electrons की कमी होती है this electrophile में. So electrophiles को हम ऐसे लिख सकते हैं E positive. ये electrophile है ये. So they may be positive charge like this CH3 positive. ये methyl carbocation है. We have RCH2 ऐसे. ये भी carbocation है. These are carbocations. They act as electrophiles because they have a carbon with this with positive charge, with sextet of electrons. Sextet of electrons means they have 6 electrons in the this shell, in the outermost shell, this carbocation. So this will act as electrophile. ये act करेंगे electrophiles. या ये neutral हो सकते हैं, neutral molecules having the functional group ऐसे, जिनमें ऐसा functional group होगा. ये positive, ये negative, slight negative. So ये ऐसे होगा, इसमें ये positive center है. या हमें alkyl halides, for example alkyl halides है, यहाँ पर ये negative, इस पे slightly positive होगा.
because of the presence of the polar bond. This has slight positive and this has slight negative. So it will act as electrophilic center. ये electrophilic center है यहाँ पर alkyl halide इसमें ये because of the polarity of the CX bond. So C here has a positive charge that will act as electrophilic center. अब ये these were electrophiles. अब जिन reactions में involve होता है nucleophile यानी the reaction which proceed through nucleophilic attack, they are known as nucleophilic reactions, or the reaction which proceed through electrophilic attack, that they are known as electrophilic reactions. उनको हम बोलते हैं electrophilic reactions. अब यहाँ पर अगर हमारे पास polar reactions होंगी, polar reactions, nucleophile attacks, यानी जो polar reactions में nucleophile attacks and electrophilic center of the substrate, यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये सबस्ट्रेट है स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है, इट विल अटैक लाइक दिस, इट विल अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट. सो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट इज दैट पाउडर एटम व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है. इसी तरह इलेक्ट्रोफिल में अटैक, इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है एट द nucleophilic center, which electron rich center. For example, we have this. हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये बनेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इसको यहाँ पर इलेक्ट्रोफिल अटैक कर सकता है. ऐसे ये अटैक हो गया यहाँ पर, ये बिकॉज दिस सेंटर इज इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है. सो इन पोलर रिएक्शंस न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एट द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इसी तरह सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एट द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट. अब जो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हम दिखाते हैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हम दिखाते हैं यहाँ पर फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये दिखाते हैं हम, ये इसको हम यहाँ पर दिखाए, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हम यहाँ पर दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाते हैं बाय यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन. यहाँ पर हम करते हैं यूज कर्व्ड एरो नोटेशन. ये कर्व्ड एरो नोटेशन लाइक दिस, ये कर्व्ड एरो नोटेशन है. अब ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहाँ से कहाँ, सो लेट अस टेक दिस टॉपिक नाउ, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस. ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे होता है, कैसे हमें दिखाते हैं. तभी हमने बोला इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हम दिखाते हैं बाय कर्व्ड एरो नोटेशन. सो लेट अस डिस्कस इट in detail a bit. So the movement of electrons in organic reactions can be shown by curved arrow notation. अभी हमने बोला जो movement हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं curved arrow notation से. Organic reactions में हम दिखाते हैं movement of electrons in curved arrow notation like this. अभी मैंने दिखाया आपको, if we have this nucleophile, so this is electrophilic center, this slide positive slide negative, यहाँ से हम ऐसे दिखाते हैं कर्व्ड एरो नोटेशन दिखाते हैं हम ये. सो यहाँ से हम दिखाए ऐसे दिखाएंगे, यहाँ से फिर ये आता है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाते हैं बाय कर्व्ड एरो नोटेशन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में. सो ये जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है ये कर्व्ड एरो actually it shows ये करता है change in position of a pair of electrons. You need to show the change in position of pair of electrons. Curved arrow starts from, ये curved arrow कहाँ से start होता है, यानी हमें जब हम दिखाते हैं change in position of a pair of electron, यानी इलेक्ट्रॉन पोजीशन की यहाँ पर चेंज होती है, उस चेंज को दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर की जो पोजीशन है उसको जब वो चेंज होती है ना, उसको उस चेंज को दिखाने के लिए कर्व्ड एरो स्टार्ट करता है फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड, यानी उस पॉइंट से शुरू करता है कर्व्ड एरो जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होती है, एंड इट एंड्स एट अ लोकेशन, और ये एंड होता है कर्व्ड एरो उस लोकेशन पे टू विच द पेयर इलेक्ट्रॉन्स मे मूव, जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करते हैं. इसका मतलब है कर्व्ड एरो शुरू होता है
जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होती है और इट एंड्स, उस लोकेशन पे एंड होता है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव होती है। सो इस तरह ये दिखाते हैं ये कर्व्ड एरो। सो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इससे शिफ्ट होती है एंड इट मूव्स हियर। सो यहाँ से शुरू होता है कर्व्ड एरो, इसका टेल और इसका हेड यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करती है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करती है इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीकों से शिफ्ट करती है। हाउ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टिंग टेक्स प्लेस, ये हम दिखाएंगे। ये है, इसमें 3 केस है। नंबर 1, शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। फर्स्ट, इट शिफ्ट्स फ्रॉम पाई बॉन्ड। ये करता है शिफ्ट फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। यानी पाई बॉन्ड से एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। If we have a molecule like this, for example, we have actually X, we have A, ऐसे होगा मॉलिक्यूल। यहाँ से कुछ होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये A है, इसको एक साइड से यहाँ आप मानिए, इसको यहाँ पर होगा A, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। ऐसे इस मॉलिक्यूल का शेप होगा। B और A के दरमियान पाई बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और A और C के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। सो अब इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होगा? शिफ्ट फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड है, ये एडजेसेंट बॉन्ड है, यहाँ से शिफ्ट होगा ये। अब जो नया बनेगा यहाँ पर, दैट विल बी B सिंगल बॉन्ड A डबल बॉन्ड C, ऐसे हो गई शिफ्ट। सो ये हो गया फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड, इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर। सो यहाँ से ये हो गया शिफ्ट, यहाँ से हो गया मूव, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट, यहाँ से शुरू, यहाँ पर एंड, यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया, यहाँ पर ये मूव हो गए। जहाँ पर मूव होता है वहाँ पर ये एंड होता है एरो। सो सेकंड केस, दूसरा केस होता है, अगर हम दूसरा केस लेंगे, दूसरे केस में पाई, ये शिफ्ट होता है फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम, फ्रॉम पाई बॉन्ड, ये मैकेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म है, पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट atom, pi bond to adjacent atom होता है ये। So this is pi bond, possibly A है, ये ऐसे अगर मॉलिक्यूल होगा, this is B, this is C for example, यहाँ पर ये pi bond है, यहाँ पर शिफ्ट हो गई ये इसका adjacent atom है, pi bond से adjacent atom ऐसे बनेगा। फिर B सिंगल बॉन्ड A सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आएगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ये शिफ्ट हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गई ऑन द एडजेसेंट एटम। इस तरह दिखाते हैं ये मूवमेंट। यहाँ पर ये फ्रॉम दिस ये था, यहाँ पर शिफ्ट हो गई, यहाँ पर यहाँ पर ये मूव हो गई। सो ये लोकलाइज हो गई इस एटम पे, ए पे। ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे शिफ्ट होता है। तीसरा केस है, इट शिफ्ट्स फ्रॉम atom to adjacent bond position, from atom to adjacent bond position। ऐसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये डबल बॉन्ड है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज A, दिस इज A, इस पे है पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर A पे, ये एटम पे है। सो ये शिफ्ट होगा एडजेसेंट बॉन्ड, हो गया B C, ये एटम से होगा एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पे, यहाँ से शिफ्ट हो गई ये जो आप नया बनेगा यहाँ पर नया स्ट्रक्चर, दैट इज B A डबल बॉन्ड C, ऐसे हो गई A B सिंगल बॉन्ड A डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से ये शिफ्ट हो गया टू द एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, एटम से हो गया शिफ्ट एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पे। अब अगर हमें ये हो गया टू इलेक्ट्रॉन पेयर मूवमेंट, अगर हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाना हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, वी शो द सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज शोन बाय, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट is shown by
half headed arrow, curved half headed arrow. ये half headed arrow है, curved. इसको just like it is a just like a fish hook. Fish hook जैसा है ये. अगर हमें दिखाना हो, we have A like this. ये electron pair है. So we'll get एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया. So this was single electron movement. हम कैसे दिखाते हैं? That is shown by single headed arrow. So let us take some examples, just जिसमें भी movement दिखाएंगे. If I take this is OH. It is a nucleophile with a lone pair. इसको lone pair of electrons होता है यहाँ पर. So this is CH3. अगर मैं मानता हूँ ये हेलो ये ब्रोमीन है. Due to the polarity of this bond, due to the electronegativity of bromine, it has slightly positive charge. It has slightly negative charge, this bromine. So this is nucleophile. So this nucleophile will attack this center. It will bring electron pair to this center because it's electron different center. So ये हमें electron movement दिखाया यहाँ पर. So we'll get यहाँ पर हमें जो मिलेगा that is CH3OH. इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया प्लस ये बाहर जाएगा. ऐसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हम दिखाते हैं. सो एडिसेंट बॉन्ड से यहाँ शिफ्ट हो गए एटम पे, एडिसेंट एटम पे, बॉन्ड से शिफ्ट हो गए एटम पे. सो दिस इज Br. इस पे आएगा ऐसे ये नेगेटिव चार्ज लाइक दिस. ये हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे मूव करता है. अब अगर हम लेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर CH3Br, ऐसे हम लेंगे CH3 हम लेंगे. सो ऐसे होगा. सो विल गेट CH3 यहाँ पर ये हो गया मूवमेंट, सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट. एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया, एक इसके साथ. सो यहाँ पर इसमें हमने दिखाया हाफ हेडेड एरो, यानी हाउ सिंगल electron movement takes place. So this was electron movement in organic reactions. So यहाँ पर हमने तीन केस पढ़े. Electron movement takes place from, and the first case is from pi bond to adjacent bond position. Second case is from atom to adjacent bond position. The third case is जो तीसरा केस है that is from pi bond to adjacent atom. I will repeat it again. From pi bond to first case, from pi bond to adjacent bond position. The second case from pi bond to adjacent atom, and third case from atom to adjacent bond position. So in दो में हम करते हैं we use curved arrow notation. Curved arrow notation हम करते हैं use to show electron movement, and to show single electron movement we show half-headed arrow. That means just like the half-headed arrow, just like that fish hook. वो fish hook जैसा होता है. So this was about nucleophiles, electrophiles, and electron movement in organic reactions.